each one, oh Lord, we pray. Touch our bodies, touch our souls, touch our spirits, touch our thoughts, we ask. That for the next hour, oh Lord, our entire being will be in your presence. That you will speak to us what you desire, and we be hungry and thirsty for your word. We pray that, Lord, speak through your servant, that your oracles may be spoken. As this day I stand here only and only in the name of Jesus, giving thanks to you, Holy Spirit, for you are here in the midst of us. Abba, Father, we all come before your throne, and we bow before you. We bow before your diadem of glory. Yes. We come before your throne of grace, O Lord, and we say, Lord God, receive us, your people, in your presence, in your throne room, where we are here to be blessed. Yes, Lord. In Jesus' name, the saints of God said, Amen. Amen, Amen. and amen. Give the Lord a clap offering, will you? Amen. You may please be seated. I want to thank the Lord for another opportunity that the Lord has given me after 2018, that I'm back in this city and I'm back in your church. मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि 2018 के बाद खुदा ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि शहर में दोबारा लेकर आए और आपकी कलीसिया में लेकर आए, क्योंकि बगैर खुदा की योजना के कुछ नहीं होता। अगर वो ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए उसका शुक्र करती हूँ पास्टर डेरिक और सिस्टर स्टेला का, जिनकी बदौलत आज उन्होंने अपना पुलपिट मुझे सौंपा है। मैं दुआ करती हूँ कि जो कलाम खुदावंद आपसे देना चाहते हैं, उस कलाम को आप दिल खोल कर स्वीकार कीजिए। I thank Pastor Derek and Sister Stella for they have given their pulpit to me, and it is a responsibility from you. Whatever I speak, may you receive it and may you be blessed. Amen. I just want, for those of you that we have not met before, and for our viewers online, I want to introduce myself as a servant of God. Many years ago, 26 years ago I would say, the Lord told me, are you willing to sacrifice for me? आज से 26 साल पहले खुदा ने मुझसे पूछा, क्या तू मेरे लिए कुर्बानी दे सकती है? And I thought the sacrifice God was asking was for me to give money somewhere, because I used to live in Vancouver, Canada, and I was working. I had a business. And I thought that if God is asking me to give a sacrifice, I think God is asking me to give someone something. And then the Lord didn't speak any further. Later the Lord said, are you willing to give a sacrifice for me? And I said, yes, Lord, tell me what I need to do. And that was when God told me, leave everything here and just go to India. Go to Mumbai and I will tell you what to do. I was asked to speak both. और तब खुदा ने मुझसे कहा कि क्या तू मेरे लिए कुर्बानी देगी? मैंने कहा हाँ खुदा, मैं दूंगी। खुदावंद ने कहा कि तू सब कुछ यहाँ पर छोड़ दे, जो कुछ तेरा है, और तू मुंबई जा, हिंदुस्तान जा, और वहां जाके मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। और वहां पर खुदा ने मुझे ऊंचाइयों पर लेकर गए, बड़े बड़े लोगों के बीच में इस्तेमाल किया। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही दुनिया भर में जानी जाती है, तो मेरा ख्याल था कि शायद इसके लिए मुझे लेकर आए हैं। लेकिन उस दरमियान खुदा ने मुझे एक रोया दी, और उस रोया में खुदा ने एक बड़ा सारा घर दिखाया, बहुत सारे पेड़ दिखाए, और पानी ही पानी था उसके आगे। और मुझे नहीं पता था ये जगह कहाँ है, मैंने कभी देखी नहीं थी, और मैं जानती नहीं थी खुदा क्या कह रहे। तब मैंने खुदा से पूछा, खुदावंद मुझे नहीं पता चल रहा, आप क्या कह रहे हैं? तो खुदावंद ने ये नहीं किया कि उसी वक्त मुझे बता दिया, बल्कि मुझसे दुआ कराते गए और कहा, यहाँ पर तू दुआ करने वाले लोगों को तैयार कर।
और मैंने 1998 25 साल पहले वहाँ पर काम शुरू किया। मैंने अपनी माँ, अपनी बहनों को, अपने काम को, अपने कारोबार को, अपने घर को, सब कुछ छोड़ दिया और एक नई जिंदगी शुरू की। और वो नई जिंदगी थी कुर्बानी की, क्योंकि खुदावन कई बार हमसे कुर्बानी चाहता है। उसने मुझे ऊंचाइयां दिखाई और फिर मुझे गहराइयों में ले गया, और उस गहराइयों में जो 25 साल में हम करते आए हैं, वो सारा बताना तो इस समय मुश्किल है। लेकिन आज मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको पास्टर जी की इजाज़त से दिखाना चाहूँगी। अगर आप में से, मेरा नहीं ख्याल रीना के अलावा कोई बॉम्बे आया है? नोबडी। हाँ जी, एक और बहन है। ओ या वी हैव संडे स्कूल टीचर ऑल्सो जो बॉम्बे से हैं। तो बहुत सारे लोग बॉम्बे नहीं गए, लेकिन मैं बॉम्बे आपके पास ले आई हूँ। हाँ जी, आप पाकिस्तान के जो लोग हैं, आप कहते हैं जिनने लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। For those of you that are from Pakistan, you say, well, if you have not seen Lahore, you haven't seen anything. But I want to say, if you have not seen Mumbai, you also haven't seen anything. So let me take you to Mumbai. The presentation, please.
ये वो जगह है जो गोया में दिखाई थी 1999 में, ये हकीकत में खुदा ने हमें दी। जिंदगी में खुदा ने जब कुर्बानी मांगी, उस कुर्बानी को देखकर मैंने जिंदगी पाई। जैसे मैं जिंदगी समझती थी वो तो अधूरी थी। आज मेरे आगे अगर कोई $1 मिलियन रखे और कहे ये ले लो, इसे छोड़ दो, तो मैं कहूँगी नहीं, यही जिंदगी असली जिंदगी है। जब किसी नंगे को कपड़ा पहनाए, किसी भूखे को खाना खिला सके, किसी घर से निकाले हुए माँ बाप को जाकर तसल्ली दे सके, जब अंधों को जिन्हें दिखता नहीं उनके लिए हम रोशनी बन सके, जब एड्स से अफ्लिक्टेड लोगों के बीच में जाकर उम्मीद की दुआ की जा सकती है, कोड़ियों के बीच में खुदा का शुक्र करते हैं, जरूरतमंदों के बीच में जहां भी खुदा इस्तेमाल करता है। जैसे आपने देखा कि हर शहर की तरह मुंबई भी एक तरफ देखो तो बहुत कुछ है और दूसरी तरफ उसमें बहुत जरूरत है। जब जब खुदा मुझे मौका देता है, जहां जहां खुदा ले जाता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहां पहुंचूं और खुदा का कलाम दूं, ताकि जो भी खुदावन अपने लोगों के जरिए बरकत देगा उसे जाकर जरूरतमंदों पे इस्तेमाल किया जाए। मैं ये नहीं कहूँगी हमारे चर्च में ज़रूरत है, हमारे चर्च के फर्नीचर के लिए चाहिए या गाड़ी के लिए चाहिए, नहीं। अगर चर्च खुदा चला रहा है तो उसकी ज़रूरतें भी वही पूरा कर रहा है। सो वहाँ कोई कमी नहीं है। अगर ज़रूरत है तो हमें और आगे बढ़ने की, और ज़्यादा मदद करने की, और ज़्यादा जिंदगियों को मसीह दिखाने की, ताकि वो भी बच सके। देना ही हमारा मकसद नहीं है, लेकिन यीशु को ले जाना हमारा मकसद है। और हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप कुछ नहीं तो दुआ तो दे सकते हैं हमें। आमीन। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि अल्फाज कम होंगे ये सब बताने के लिए, तो थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि ये है हमारी हकीकत, ये है हमारा काम। आए खुदा के कलाम में चले। आज सुबह मैंने कुछ और तैयार किया था, लेकिन पादरी साहब को मैंने बताया कि सुबह खुदा ने मुझे उठाकर जो कलाम दिया है वो मुझे यकीन है, और मैंने रुककर दुआ में खुदा से पूछा, और ये कलाम जो तब्दील किया है खुदा ने, ये आपको देने के लिए मुझे कहा गया है। आमीन। आमीन। मैं चाहूँगी अगर आप अपनी बाइबल लेकर आए, अगर तो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी बाइबल लेकर आए। हालेलुया। आजकल हम एक टेक savvy हो गए हैं। We have become tech savvy, so we don't carry our Bibles, we carry our cell phones. But tell me, is your cell phone holy? क्या आपका सेल फोन जो है वो होली है, पवित्र है, पाक है? नहीं, उसमें हर किस्म की चीजें आती हैं। लेकिन यीशु मसीह जो हैं वो 2 हिस्से में हैं, जिंदा कलाम और लिखा हुआ कलाम। जब आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है तो आपका रिश्ता लिखे हुए कलाम के साथ भी उतना ही होना चाहिए जितना जिंदा कलाम के साथ है। माफ कीजिएगा, मैं आपको करेक्शन दे रही हूं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताना कि कभी भी अपनी तलवार के बगैर ना निकलना, क्योंकि ये कलाम ही आपकी तलवार है, ये कलाम ही आपको बताता है, ये कलाम ही आपकी रक्षा करता है। Never go out without your sword,
Because it is the word of God that helps you. It is the word of God that guides you. It is the word of God that leads you. Amen. Don't become so tech savvy that you don't need the Bible. This is His holy book. You know, we think we are superior than people who don't know the Lord, but they still value the piousness of the word. But we have gone far. So church, I say that it is important that we have the word of God so that you know what the pastor is preaching is not of the pastor's own will, but it is written in the word of God. जो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप जाने कि कलाम आपके पास होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि जब कलाम दिया जाता है पासबान से तो आपको पता हो कि ये कलाम में लिखा हुआ है और उस कलाम को आप अपने साथ रख सकते हैं, आप उसे कभी भी रेफर कर सकते हैं। आमीन। और जान सकते हैं कि आज इस तारीख को खुदा ने आपसे हम कलाम किया है। आमीन। सो मैं चाहूंगी आपकी बाइबल्स में पहला सलातीन 18 बाब निकालें। फर्स्ट किंग चैप्टर 18। इफ यू फाउंड इट, I'd like to hear an amen। अगर आपको मिल गया है, आमीन से कहिए। आमीन। I'll probably be needing someone to read it in Urdu, but not right now. Keep it open, and let's go on. I will tell you briefly about what the Word of God says. In 1 King chapter 18, verses 1 and 2, the Bible says that there was a famine in Samaria for 3 years. कलाम हमें बताता है सामरिया में 3 साल तक वहां पर क्या था? सूखा था। And people over there had no water. And imagine if there is no water for 3 years, what would be the condition of the people? जो लोग कल प्रेयर मीटिंग में थे, आप ये सोच रहे हो कि मैं दोहरा रही हूँ, मैं वो हिस्सा नहीं बता रही, मैं एक और हिस्सा बता रही हूँ कलाम का। सो सामरिया में 3 साल तक सूखा था और खुदावंद अपने नबी एलिजा से कहते हैं कि तुम जाओ और अहाब को के सामने पेश हो। और खुदा कहते हैं तुम जाओ और अहाब के सामने पेश हो और मैं इस धरती पर, इस लैंड पर, जमीन पर बारिश भेजूंगा। The Lord said to Elijah, go and show yourself to King Ahab and I will send rain on the earth। और बाइबल बताती है कि किंग अहाब तो बुरा आदमी नहीं था इतना, लेकिन उसने एक बुरा काम किया था, उसने गलत औरत से शादी कर ली थी। और वो औरत जो थी वो थी जेज़ेबेल, जो औरतों के नाम पे धब्बा थी। वो बहुत ही बुरी औरत थी और उसने खुदा के जितने नबी थे उनको मरवा दिया था। और अपनी तरफ से उसे पता था कि सारे नबी मर चुके हैं, लेकिन एलिजा बच गया था। लेकिन एलिजा ही नहीं, ओबेदाया ने 100 नबियों को छुपा लिया, 50 को एक गुफा में, 50 को दूसरी गुफा में। और उसको पता था ये खुदा के नबी हैं, ये तो चाहती है सारे मर जाए, तो उसने उनको वहां छुपा दिया और उन्हें रोटी और पानी देता रहा, उनकी देखभाल करता रहा। और उनके अलावा एलिजा एक नबी बच गया था, जिसे खुदा कहता है जा तू अहाब राजा के पास जा और मैं धरती पर, जमीन पर बारिश भेजूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो एलिजा खुदा के हुक्म का पालन करते हुए जाता है और आगे उसे ओबदिया मिल जाता है और वो उससे देखकर कहता है मास्टर क्या आप हो? वो हैरान हो जाता है उन्हें देखकर और वो डरता भी है कि उसे कहते हैं जाके राजा अहाब को कह कि मैं आया हूं। वो डरता है, क्यों? क्योंकि अगर मैं चला गया राजा अहाब को कहने और ये आया ही नहीं, जो खुदा का भविष्य वक्त है वो अगर नहीं आया, नबी है वो नहीं आया, तो मेरी तो हो जाएगी। तो वो डरता है। लेकिन एलिजा उससे कहता है कि तू जा, मैं आऊंगा
और वो डरा नहीं बल्कि उसके सामने गया, क्योंकि पिछली बार जब उन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ था, the last time there was a confrontation between King Ahab and Elijah. Nobody thought that Elijah would ever stand before him. But now we see, the word of God says, that Elijah said to Ahab to gather all Israel for him at Mount Carmel. What is Elijah asking? Gather all Israel. सारे इजराइलियों को Mount Carmel पे जमा कर. He's asking all of them to be gathered at Mount Carmel. And he said, also gather the 450 prophets of Baal. जो जेज़ेबेल ने नबी बनाए हुए थे, जो बाल के भविष्यवक्ता थे, जो बाल के नबी थे, वो कहता उन्हें भी बुला, सारे इजराइल को जमा कर और उन नबियों को भी जमा कर. और वहां पर उन सबको बुलाने के बाद 21 वचन जो है, 21 वर्ष जो है कोई जना पड़े, वर्स 18-21. और एलिया सब लोगों के नजदीक करमल पर इकट्ठा किया, और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो. पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब न दिया. Now he went before the Israelites and he said, make up your mind, decide what is right for you. If you say that the God our Lord is God, then follow him. If you say that Baal is God, then follow him. Make up your mind who is God for you. But they did not speak up before Elijah. उसने कहा, फैसला करो, क्या तुम्हारा खुदा वो खुदा है जो आसमान का खुदा है, या तुम्हारा खुदा वो बाल है? दोनों तरफ ना रहो, एक टांग इधर ऐसे ना रहो. फैसला करो कि तुम्हारा खुदा कौन है, और जो तुम्हारा खुदा है उसकी तरफ हो जाओ. लेकिन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया. और फिर आगे कलाम बताता है कि एलाइजा ने कहा कि मैं अकेला नबी रह गया हूं, लेकिन बाल के नबी जो हैं 450 हैं. मैं अकेला हूं, लेकिन उनके नबी कितने हैं? 400. आगे जाके फिर 50 आ जाते हैं. 450 नबी हैं. तो वो कहता है, ठीक है, आज तुमसे फैसला नहीं हो रहा, you are not able to decide who is your God, so let's do one thing. So what does Elijah say? He was very bold, you know. So what did he say? He said, I am alone, and Baal's prophets are 450. 400, your Bible will later on add on 50. So he says, they are here too, you are here too. Let them bring 2 bulls. क्या कहते हैं बुल को? बैल. कहता है 2 बैले लाने को कहो उनसे. वो 450 नबियों को कहता है 2 बैले लेकर आओ, और वो 2 बैले लेकर आते हैं, और कहता है इन दोनों बैलों में से ये चुन ले, इनको कौन सी बैल चाहिए. यानी उनको फर्स्ट प्रेफरेंस भी देता है, और वो बैल चुनते हैं जो उन्हें चाहिए. फिर एलाइजा कहता है कि अब इसे काटो, टुकड़ों में काटो, इसे तैयार करो, यानी मसाला लगाओ, और फिर इसे वेदी पर रख दो. क्या कहा था आपने? मज़बा पर रख दो, लेकिन आग नहीं जलाना नीचे. अगर तुम्हारा खुदा है तो उससे इसी तरह से इसे कबूल करना होगा, बगैर आग के. कच्चा पड़ा हुआ मीट. कहता है अगर तुम्हारा खुदा है तो वो इसे कबूल करेगा. Elijah defied them and he said, take the bull, cut it in pieces and dress it up and put it on the wood at the altar, and if your God is God, he will consume it. Let it be proved to Israel, let it be proved to the people who is God indeed. So उनको ये चैलेंज दिया गया, और फिर उसने कहा कि तुम अपने खुदा का नाम बुलाओ और मैं अपने खुदा का नाम बुलाऊंगा. What a boldness that was, right? He says, you call upon your God and I will call upon my God. He who answers by fire, he is God. दोनों में से जो आग से जवाब देगा
वही खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। उसमें इतना भरोसा था अपने खुदा पर, उसे इतना यकीन था अपने खुदा पर कि जो वो कह रहा है उसका खुदा सुन रहा है। आपको और मुझे इतना यकीन होना चाहिए अपने खुदा पर कि जो हम कहते हैं हमें यकीन होना चाहिए कि खुदा सुनता है। हालेलुया। उसने इतने सारे लोगों के सामने, भरी इज़राइल के सामने एक चुनौती दे दी। उसने कहा अगर तुम्हारा खुदा खुदा है तो वो आग से इस बलिदान को, सैक्रिफाइस को, क्या कहते भाई, कुर्बानी को कबूल करेगा। अगर मेरा खुदा खुदा है तो वो आग से मेरी कुर्बानी को कबूल करेगा। अब कंपटीशन शुरू हुआ। हेलो, अब कंपटीशन शुरू हुआ और एलिजा ने क्या किया, टॉस तो होता नहीं था तब, उसने खुद से ही कहा लो तुम्हारे को पहली बारी दी जाती है, और उन्हें पहली बारी दे दी। हाँ जी, उन्होंने लिया उस बैल को और उसे तैयार किया, मसाले ससाले लगाए, काटा और फिर लकड़ी के ऊपर रख दिया। और सुबह से दोपहर तक वो चिल्लाते रहे, बुलाते रहे, पुकारते रहे, ओ बैल हमारी सुन ले, ओ बैल इसे कबूल कर ले। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं था। They kept crying and calling out saying, oh Baal, receive this sacrifice. Oh Baal, hear us. But there was no response. Come afternoon, when they were quite tired, continuously they were calling out to Baal. Elijah mocks at them. जब दोपहर होती है और दोपहर तक उनके भगवान ने, उनके बाल ने अभी तक उसे स्वीकार नहीं किया जो बलिदान उन्होंने चढ़ाया था, तो एलिजा उनसे कहता है और जोर से चिल्लाओ, आवाज बढ़ा लो अपनी। हो सकता है तुम्हारा जो भगवान है या खुदा है वो सो रहा हो सकता है वो कहीं सफर कर रहा हो, उसे सुनाई नहीं दे रहा होगा, और जोर से बोलो। तो वो बेचारे और जोर से चिल्लाने लग गए, दोपहर से शाम तक और जोर से चिल्लाए। He said to them, he says, cry out loud, shout louder. Maybe your God is sleeping, maybe your God is traveling, maybe he hasn't heard you. So they started shouting even more louder after lunchtime. And now they were shouting on top of their voice that they were full of fervor, that they were falling on the sacrifice. वो गिर रहे थे उस बलिदान के ऊपर और पूरे जोश से वो बाल को पुला रहे थे। There was no result. They were getting frustrated. कोई भी जवाब नहीं आ रहा, वो परेशान बेअबान हो गए। उन्होंने क्या किया, छुरियां निकाली, ब्लेड निकाले, खुद को काटने लग गए और अपना खून उस बलिदान पे लगाने लग गए, ताकि ये देख के तो बाल आ जाएगा। लेकिन क्या बाल आया? ना, बाल नहीं आया। वो झूठा था, वो सच्चा नहीं था, वो झूठा था, वो नहीं आया। और शाम होने लगी और उनके चिल्लाने, उनके खून बहाने और उनको उसके बलिदान के ऊपर गिर गिर के जाने के बावजूद बाल नहीं आया और उसने कोई ध्यान नहीं दिया। 30 आयत को पढ़ें जरा, देखिए आगे क्या होता है। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। Then Elijah said to all the people, come near to me. So all the people came near to him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Now the first thing, he repaired, say he repaired. He repaired. उसने उस क्या बोले, मज़बे को पहले मरम्मत किया। आप सोचते हैं जब मर्जी मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, जब मर्जी मैं दुआ कर लूं, जब मर्जी मैं कह लूं, खुदा को तो सुननी पड़ेगी। लेकिन क्या आपने अपनी दुआ के मज़बे को, अपनी बलिदान के मज़बे को मरम्मत किया? क्या आपने खुदा के लिए उसे तैयार किया? ये सवाल मैं आज आपके आगे रखती हूं। सबसे पहली बात है कि हमें अपने दुआ के मज़बे को, अपने बलिदान के मज़बे को पहले दुरुस्त करना है।
And Elijah, what he did, he took 12 stones and he made an altar out of that. And he put them according to the tribes of the sons of Jacob, whom the Lord had called Israel, shall be your name. उसने क्या किया? बड़े बड़े 12 पत्थर लिए और उन पत्थरों को रखा. कैसे उसने दुरुस्त किया? उन पत्थरों को 12 पत्थरों को रखा. वो 12 पत्थर याकूब के बेटे जिन्हें इज़राइल नाम दिया गया था उसके नाम के साथ साथ उन पत्थरों को रखा. क्यों? क्योंकि उनके लिए माफी मांगनी जरूरी थी, उनको बलिदान देना जरूरी था. वो खुदा को छोड़ बाल के साथ चले गए थे. तो उसने दुरुस्त किया उस मज़बे को और उनको पहले उसकी जगह पे रखा. और फिर कलाम बताता है कि उसने क्या किया? उसने उसके बाद पत्थर रखने के बाद उसने he made a trench around the altar and it was enough as deep enough for 2 gunny bags of seeds. उसने गड्ढा खोदा उस पत्थर के मज़बे को बना के, उसके साथ साथ गड्ढा खोदा चारों तरफ. उसके साथ साथ गड्ढा कितना गहरा था? आप 1 गोनी अनाज रख लो, 2 गोनी अनाज रख लो. अब कनाडा में तो हम ये देखते नहीं है गोनियां, लेकिन हम पाकिस्तान इंडिया से आए हैं, हमें पता है गोनियां क्या होती है. तो वो बड़ी 40 किलो की होती है, 100 किलो की होती है. तो इतना गहरा, 1 फिर 2 और भी गहरा. उसने इतना गहरा गड्ढा खोदा. अब आप सोचते होंगे ये सब करने की क्या जरूरत थी उसको? इसमें जो कुछ वो कर रहा था उसकी जरूरत थी, और आप देखोगे आगे जाके क्या जरूरत थी. उसने जब गड्ढा खोदा फिर उसने उन पत्थरों के ऊपर लकड़ी को रखा. अभी वो क्या कर रहा है? मज़बे को दुरुस्त कर रहा है, ठीक कर रहा है. उसने अब वो लकड़ी को रखा और उस लकड़ी को रखकर उसने उस बैल को जो उसके हिस्से में आई थी उसको काटा. बैल को काटकर उसने उस बैल को छोटे छोटे टुकड़े कर उस लकड़ी के ऊपर रख दिया. अब ये क्या तैयार कर रहा है? मज़बा तैयार कर रहा है. He is preparing a sacrifice. He put the wood on the stones, and then he put on the stones, he put the bull that he had cut into pieces, dressed, and he put it on that, and he's preparing an altar for sacrifice, for a burnt offerings. And then he asked them, go, bring 4 water pots. वो कहता है इजराइलियों से, जाओ 4 घड़े समझते हैं? ड्रम पानी के बड़े वाले ड्रम 4 ले आओ. अब सारे उसका मुंह देखें, क्या 4? इसको क्या हो गया? 3 साल से पानी नहीं है, 3 साल से बारिश नहीं पड़ी, और ये कह रहा है 4 बड़े ड्रम ले आओ. लेकिन एलाइजा को ना कौन कर सकता है? वो तो पूरे जोश में था उस वक्त. उसने कहा 4 बड़े बड़े ड्रम लेकर आओ पानी के. तो वो जाते हैं, 4 ड्रम लेकर आते हैं, और वो चारों ड्रम्स को कहता है उस कुर्बानी के ऊपर डाल दो. 1 2 आगे 3 फिर 4, और वो कुर्बानी के ऊपर पानी डुलता गया, बहता गया. That he ordered for 4 drums of water, and they brought the water, and they were very hesitant because there was a scarcity of water. There was a famine in the land. But when they brought the water, he told them, put it on the sacrifice. He put it on the sacrifice. They put 1 drum, 2 drums, 3 and 4, and the water just went all over the sacrifice. They thought, that's it, it's done. He says, go, bring 4 more drums of water. कहता जाओ 4 और ड्रम पानी के ले आओ. That must have been even more difficult. वो तो और मुश्किल हो गई होगी. क्यों? क्योंकि अभी 4 तो हमने कुर्बान कर दिया, अभी और 4 मांग रहा है. तो फिर वो जाते हैं, उसकी सुन्नी तो पड़नी थी उनको, जाके 4 और ड्रम पानी के ले आते हैं. कहता डालो इसके ऊपर. जब उन्होंने 4, ये अभी 4 के बाद कौन सा? 5 बोलो. 5 फिर 7 डाल दिए. तो अब वो कुर्बानी के ऊपर से पानी जो है वो गड्ढे में जाने लगा. वो जो डीप गड्ढा उसने खोदा था उसमें जाने लगा. आप मेरे साथ हैं? समझ रहे हैं?
वो जो पानी उसने कुर्बानी पे डाला था वो उस गड्ढे में जाने लगा। तो उन्होंने सोचा बस अब हो गया, 8 पूरा हो गया। उसने कहा जाओ तुम भी लेके आओ 4 ड्रम पानी के। वो भी जाके फिर ले आए। उन्होंने देखा भाई इससे तो कोई उपाय नहीं है, ये मांग रहा है, लाना पड़ेगा। तो 4 ड्रम पानी के वो ले आए। तो अब कितने पे रुके थे आप? 12 पे नहीं, 8 पे। अब डाले 9। अब पता क्या हुआ? 12 ड्रम पानी डालने से सारा गड्ढा ओवरफ्लो होके गड्ढा भर गया। कुर्बानी पे भी पानी आया और गड्ढे में भी पानी आया। हालेलुया। इसका क्या कर रहा था? इसका बुढ़ा हो गया था एलाइजा, कहीं दिमाग फिर गया था। क्यों ऐसे कर रहा था जबकि लोगों के पास पानी नहीं है? वो उनको पानी लाके डलवाता जा रहा है और उसके बावजूद कि वो पानी डाल रहे हैं, वो कुर्बानी के ऊपर से पानी गड्ढे में जा रहा है। तो सोचो उन लोग की क्या हालत होगी जिनके पास पानी नहीं था, और जो था वो सोने की बराबर था। जब आपके पास कोई चीज ना हो ना, तो वो जब मिल जाए तो वो आपके लिए सबसे कीमती होती है। हाँ जी, किसी गरीब के पास पूछो जिसके पास रोटी ना हो, और जब उसे रोटी मिले तो उसको कुछ नहीं पसंद आता, सिर्फ रोटी पसंद आती है। वो रोटी उसके लिए सब कुछ है। सो ये लोगों के लिए पानी सब कुछ था, लेकिन एलाइजा ने कुछ सिखाना था उन्हें, और उसने उनसे ये पानी दलवा दलवा के 12 ड्रम पानी दलवा दिया। उस मज़बे को बनाने के लिए 12 पत्थर डाले। अब उसके ऊपर 12 ड्रम पानी डाला। अब ये 12 का क्या गिनती है? 12 कबीले। आई डोंट नो व्हाट यू से इन उर्दू। कबीले 12 ट्राइब्स, या इन इंग्लिश इट्स ट्राइब्स। 12 कबीले इज़राइल के, द 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल were out there represented in forgiveness before the Lord, giving a sacrifice to the Lord. He brought that sacrifice on behalf of all of them. उन सब की तरफ से उसने वो बलिदान, वो कुर्बानी वहां पर डाली। 12 पत्थर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, 12 कबीलों को। 12 ड्रम पानी उनको रिप्रेजेंट कर रहा था जिनके पास पानी नहीं था, वो 12 कबीलों के पास। और फिर हम देखते हैं 35 वर्ष अगर कोई पढ़े। और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई में भी पानी से भर दी। पानी बहने लगा और उसने क्या किया? खाई में भर दिया। ये मैंने आपको बताया ना। तो कलाम ये कहता है कि पानी जो है वो बहकर उसको उसने भर दिया। भाई आप अगर 36 और 37 भी पढ़ दे मिले। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ऐ खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इस्राइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राइल में तू ही खुदा है। Amen. और मैं तेरा बंदा हूँ। Amen. और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। Amen. मेरी सुन ऐ खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। Amen. 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 So the water ran all around the altar, and he also filled the trench with water. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things according to your word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you are Lord God, that you have turned their hearts back to you again. Amen. Amen. उसने कहा मेरी दुआ को सुन, मैंने जो कुछ किया तेरे कहने पर किया है, मेरी दुआ को सुन. He said, hear my prayer, because whatever I've done it according to what you've asked me to do. He said, I have done it so that their hearts be turned back to you. Hear my prayer, O Lord. Hear my prayer. And come, that this people may know that you are Lord, our God.
Hallelujah. And in verse 38, the Bible says, then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust. It licked up the water that was in the trench. Urdu, please. तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सौतनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। Amen. और उसने पानी को जो खाई में था चाट लिया। Hallelujah. Are you with me? Hallelujah. Are you with me, church? Hallelujah. We are talking about sacrifice. Hallelujah. We are talking about him waiting all day for the prophets of Baal to get their sacrifice taken by their God. But it did not happen. And now it's time of the evening sacrifice. अब आप देख रहे हैं कि सारा दिन बाल के नबियों ने कोशिश कर ली, लेकिन उनका मज़बा जो था वो वैसे ही रहा। उनका भगवान, उनका खुदा आया ही नहीं, उसे लिया ही नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं। लेकिन अब बारी आ गई एलाइजा की, और जब एलाइजा ने उस मज़बे को दुरुस्त किया, इसीलिए मैं ये कलाम आपके पास लेकर आई हूँ। आपकी दुआ जिंदगी को दुरुस्त पहले करना जरूरी है। कहाँ छोड़ी थी आपने, किस तरह छोड़ी थी? पहले आप कहते हैं, पता है पास्टर जी, पहले तो ना मैं इतना जब प्रेयर करती थी ना तो खुदा की रूह आ जाती थी। पहले मैं प्रेयर करती थी और खुदा उसी वक्त जवाब दे देता था। वो कौन से सन की बात है, याद है आपको? Do you know people come and say, they say, Pastor, do you know when I used to pray, the Lord used to hear my prayer? Do you know when I prayed, the Holy Spirit would just come? I mean, I had such a time with the Holy Spirit. And I ask you one question, how long ago was that? How long ago was it? Was it once upon a time? कितनी देर पहले की बात है? क्या ये एक बहुत पुरानी बात है? ये याद करो, अपने खुदा के साथ बनाए उस अहद को जो आपने किया था, याद करो। अपने मज़बे को दुरुस्त करो, खुदा से तौबा करो, और खुदा को वो दो जो आपके लिए सबसे मुश्किल है। उस दिन बैल मुश्किल नहीं था, पत्थर मुश्किल नहीं थे, लकड़ी मुश्किल नहीं थी, गड्ढा मुश्किल नहीं था, लेकिन सबसे मुश्किल चीज खुदा को देना उस दिन क्या था? क्या था? पानी। और वो कुर्बानी जब दी गई खुदा को, वो पानी जब दिया गया खुदा को, तो कलाम कहता है, मैं चाहूंगी भाई आप एक बार फिर से 38 से पढ़ दें, देखो तो सही खुदा ने अब कैसे कबूल किया इसे। जी भाई। तब खुदावन की आग नाजिल हुई, तब खुदावन की आग नाजिल हुई, और उसने उस सौतनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया। आप सोचे खुदा को कितनी पसंद आई वो कुर्बानी। उन्होंने उस कुर्बानी को ही नहीं बल्कि लकड़ी को भी, पत्थरों को भी, और जो पानी गड्ढे में चला गया था उसको भी चाट लिया आग ने, खुदा की आग ने, तो मिट्टी भी ले ली, यानी खुदा को वो कुर्बानी कबूल हुई। हालेलुया। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, पास्टर ने एक बात कही, मैंने पकड़ ली थी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद हमें इस जगह से मूव होना है, और मेरा ख्याल है अभी तक हमें पता नहीं कहाँ मूव होना है। ये अभी पास्टर ने बात करते करते ये बात कही थी, अगस्त एंड में ये चर्च से मूव होना है। क्यों? क्योंकि ये चर्च के जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें हमारी इबादत पसंद नहीं, उन्हें हमारा खुदा के साथ संबंध रखना पसंद नहीं, उन्हें हमें पाक रूह में बढ़ते देखना पसंद नहीं। तो ये चुनौती हमारे सामने आई है, कलीसिया के सामने आई है। लेकिन कलीसिया आज ये ऐसा ही नहीं है कि यहां से उठे वहां गए, लेकिन आज जरूरत है आपको। मैं अब जब चर्च में आई हूं तो मैं समझी हूं कि ये वचन क्यों दिया, ये कलाम क्यों दिया खुदा ने। आमीन। क्योंकि आपको खुदा जगाना चाहता है, आपसे खुदा चाहता है कि आप एक ऐसी कुर्बानी तैयार करें, एक ऐसा मज़बा तैयार करें, आप खुदा के आगे आए और दोबारा दुरुस्त करें अपनी दुआ की जिंदगी को, ताकि आप खुदा से कहें और खुदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया।
और कल हमने क्या देखा था, खुदा हमारी हदों को बढ़ा, और आज हम शक न करें, शुबा न करें, हम अपनी हदों को बढ़ता देखें। हम सिर्फ चर्च के स्क्वायर मीटर को बढ़ता ना देखें, बल्कि ऐसी जगह खुदा चर्च दे जहां और लोग उसको जाने, जहां और लोग आए, और लोग माने। हालेलुया। तो ये चुनौती आज आपकी कलीसिया के आगे आज खड़ी है। मैं ये नहीं कह रही आपके लिए, मैं कह रही हमारे लिए, क्योंकि हम एक कलीसिया हैं। हालेलुया। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि खुदा के आगे शाम की कुर्बानी, यानी शाम की कुर्बानी क्या है? Anybody can tell me what is शाम की कुर्बानी? What is an evening sacrifice? I'll give you a hint. Daniel. दुआ नहीं, दुआ तो है. Daniel gave an evening sacrifice. What was it? What is an evening sacrifice? सुबह तो हमें पता, उठ के पहले कहते हैं दुआ करो, दुआ करो. रात को सोते टाइम कहते हैं दुआ करो, दुआ करो. We know that, kiddies. We know that in the morning when we wake up, we are told pray, pray, pray. At night when we go to sleep, pray. When we are eating, pray. But what is evening sacrifice? No? What is evening sacrifice? I want to tell you. Because for the purpose of your church, there is need for you to give an evening sacrifice to the Lord. I don't know how many times you pray, and I'm not going to take an account of it. But an evening sacrifice is given to God as a thanksgiving sacrifice. A thanksgiving offering is given to Him. आप शुक्रगुजारी की दुआ करें, शुक्रगुजारी का मज़बा बांधे, शुक्रगुजारी का आप वहां पर दुआ करके खुदा को कबूल होते देखें, और खुदावंद आपकी दुआ सुनेगा। आप इन चार लफ्जों को देखें जो एलाइजा ने कहा, उसने कहा मेरी सुनो। 37 भाई, मेरी सुन। हाँ जी, खुदावंद मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। हालेलुया। मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि तू ही खुदा है। क्या आप में से कोई है जो ऐसी दुआ मांग सकता है? शाम की कुर्बानी, यानी शाम को शुक्रगुजारी दे खुदा की। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तूने कर दिया, तूने सुन ली हमारी दुआ, तूने हमारी कुर्बानी को कबूल कर दिया, हमारे लिए कलीसिया का बंदोबस्त कर दिया है। ऐ खुदा, तू हमारी दुआ को सुनने वाला खुदा है। हालेलुया। क्यों ना आप अगर तालियां दे रहे खुदा को, तो जोर से दे ताकि वो भी सुन ले। हालेलुया। और कलाम बताता है वर्स 39 में, भाई जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। हालेलुया। जब सबने ये देखा, जब सबने देखा तो मुंह बल गिर गए। कल हमने मुंह पे गिरने की एक और बात सीखी थी, आज एक और बात सीख रहे हैं। अब वो मुंह के बल इसलिए गिर गए क्योंकि उनके सोच, उनके तसव्वुर से बढ़कर उन्होंने वो मौजज़ा होते देखा है। और वो मुंह के बल गिर के कहते हैं सचमुच, क्या कहा? खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है, खुदावन वही खुदा है। Truly they went on their face before the Lord, before that altar, and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. And they came back to Him. Hallelujah. 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 Close your eyes. Hallelujah. I don't know what you need in your life, but I know that there is needs that you may have brought before the Lord. मैं नहीं जानती आपकी ज़िंदगी में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप अपनी ज़रूरत को खुदावन के सामने लेकर आए हैं, कई बार अकेले में, कई बार पासबान के साथ। And whatever your need is, you've seen His hand in your life in the past. आपने पिछले ज़िंदगी में खुदा को आपकी ज़िंदगी में काम करते देखा है, आपने उससे मौजज़े करते देखा है, उसने अनोखे काम किए आपके लिए। तो मेरे भाई, मेरी बहन, आज कलीसिया की ज़रूरत के साथ साथ आपकी भी कोई ज़रूरत अगर हो, तो ये उसे पीछा ना छोड़े, उसे पीछे ना छोड़े। खुदा वो भी पूरी करना चाहता है। वो आपसे प्यार करता है, और वो आपके लिए ये कह रहा है कि जो तू मांगेगा मुझ पर भरोसा कर,
और मैं तुझे दूंगा। Yes. ये किसी भाई से खुदा कह रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर और मैं तेरा खुदा इसे पूरा करूंगा। Yes. मेरी बहन, आपकी जरूरतें कई बार आपने दुआ में खुदा के आगे रखी, लेकिन आज खुदा कह रहा है उस मसबे को दोबारा बना, उस मसबे को दुरुस्त कर, उस मसबे को दुरुस्त कर, ताकि उस मसबे पर की दुआ को मैं उसी वक्त सुनूं। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि हमारा खुदा ही खुदा है, उन्होंने उसको मौजज़ा करते भी देखा। आगे आप बाइबल में पढ़ो तो बारिश हुई, वहां पर बहुत बारिश हुई। If you read in the Bible further on, you will see that it rained once they fell on their face and admitted, our Lord, He is God. Our Lord, He is God. Yes. God sent rain upon the land. The famine was gone, and God's faithfulness brought fruitfulness on the land. अकाल चला गया और खुदा की वफादारी उस जमीन पर फलदायक जमीन बना दी उसको। जहां कोई उपज नहीं था, जहां कुछ नहीं उग सकता था, जहां पानी ना पड़ा हो, उसे खुदा ने बरकत दे दी। आज आपकी जिंदगी में खुदा बरकत देना चाहता है। Amen. लेकिन क्या आप अपने मसबे को दुरुस्त करेंगे? ये आपके और खुदा के बीच में है। अगर आप अपने मसबे को दुरुस्त करके आज खुदा से कुछ भी मांगने आए, यकीन के साथ आना, खुदा आपकी दुआ सुनेगा। Hallelujah. आपकी दुआ सुनेगा, Amen. Yes. ताकि लोग जाने कि आपका खुदा ही खुदा है। If you repair your altar and you come before Him with whatever your need may be, the Lord will hear you. Yes. So the people around you will know that your Lord is God. That your Lord is God. If that is you, come, let us make a prayer of agreement. आए हम सहमति में दुआ करें, क्योंकि कलाम कहता है जिस किसी दुआ को दो जने एक साथ सहमति में मांगते हैं, जमीन पर वो आसमान में पूरी होती है, Yes. सुनी जाती है। Yes. Whatever two of us will bind on earth will be bound in heaven. What two of us will loosen on earth will be loosened in heaven. So come, let us come in agreement and make a prayer unto our God. He is here. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. अगर आपको दुआ की जरूरत है तो आप आ सकते हैं। हम एक साथ दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आप और मैं एक साथ दुआ करेंगे। खुदा सुनेगा हमारी दुआ को, Hallelujah. Thank you, Jesus. खुदा सुनेगा। आज वो कहता है इस कलीसिया के उस मसबे को दुरुस्त कर दिया है। Hallelujah. इस कलीसिया की कुर्बानी को मैंने देखा है और मैं उस कुर्बानी को कबूल करता हूँ।